Hello everyone, I am Ruchi. Welcome to my channel Reckon Classes. Today I will teach you a lesson on surface areas and volume part 3 for class 9 CBSE. Now, today we will discuss about volumes of cuboid, cube and cylinder. Let's start. Volume of a cuboid. Suppose we have a cuboid and length is L, breadth B and height H. ये हमें दिया हुआ है. So we can say volume of a cuboid. Cuboid में base जो होता है वो एक क्या होता है, rectangle. And rectangle नीचे जो base होता है वो हमेशा rectangle होता है. तो volume of a cuboid equal to base area into height. एंड बेस रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, L इंटू बी एंड हाइट H. इतना क्यूबिक यूनिट्स, जितनी भी क्यूबिक यूनिट होगा LBH. तो वॉल्यूम हमारे पास हो जाएगा LBH क्यूबिक यूनिट. यूनिट्स में कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर, मीटर, क्यूबिक मीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर. इस तरह से हम इसका वॉल्यूम का यूनिट्स बताते हैं. नाउ अगर मान लीजिए इस क्यूबॉइड की सब लेंथ, विड्थ और हाइट सभी एक ए हो जाए, सभी सेम हो जाए, तो वो हमारा क्या बन जाता है, क्यूब. इट मीन्स क्यूब का बेस कितना क्या हो जाएगा, स्क्वायर. तो अगर हम वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इसकी बात करें तो हमारे पास वॉल्यूम कितना हो जाएगा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होता है, L इंटू बी इंटू एच. यहाँ पर सभी ए हैं तो A इंटू ए क्यूबिक यूनिट एंड दिस इज इक्वल टू A क्यूब क्यूबिक यूनिट. सो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इक्वल टू A क्यूब. Example number first. A cuboidal water tank is 6 meter long, 5 meter wide, 4.5 meter deep. How many liters of water can it hold? So, volume of a cone, a volume of a cuboid equal to L into B into H. And here L equal to 6, B equal to 5 and H equal to 4.5 meters. So this is equal to मीटर क्यूब. हमें पता है कि वॉल्यूम को हम मीटर क्यूब में या सेंटीमीटर क्यूब इसमें डिनोट करते हैं. देन दिस इज इक्वल टू 135 मीटर क्यूब. हियर गिवन 1 meter cube equal to 1000 liter. So, water can hold equal to 135 into 1000 liters. So, this is equal to 135,000 liters. So, this is our answer. Now, next one. A capacity of a cuboidal tank is 50,000 liters of water. Find the breadth of the tank if its length and depth are respectively 2.5 meter and 10 meters. So here volume, capacity means volume. So volume is given, volume equal to 50,000 liters. This is given and length equal to 2.5 meters and depth or height equal to 10 meters. Now we know that volume इक्वल टू कितना है, 50,000 लीटर. एंड अगर हमें इसको मीटर क्यूब में चेंज करना है तो
हम इसको क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास मीटर क्यूब आ जाएगा सिंस 1 मीटर क्यूब equal to 1000 liter. So this gives 50 meter cube. Now we know that volume of a cuboid equal to L into B into H. L and H given है. This implies B equal to volume upon L into H. Substitute the values of volume, length and height or depth. 50 upon length is given 2.5 and depth or height equal to 10. So this is it, the meters. Then this is equal to, कैंसिल कर देंगे पॉइंट हटा के यहाँ 0 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल एंड 25 से 50 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, सो 2 meters. So breadth equal to 2 meters and this is our answer. Now next one, question number 3rd. In question number 3rd, a solid cube of a side 12 centimeter is cut into 8 cubes of equal volume. What will be the side of the new cube? Also find the ratio between their surface areas. So here first bigger cube का side कितना दिया हुआ है 12 centimeter. So volume of the cube of side 12 centimeter equal to क्यूब का साइड कितना होता है साइड इंटू साइड मीन्स 12 इंटू 12 सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर. सो दिस इज इक्वल टू 1728 centimeter cube. Now number of small cubes कितना है 8. Number of smaller cubes equal to 8. It means volume of a smaller cube कितना हो जाएगा. टोटल वॉल्यूम जो बिगर वाले का वॉल्यूम है 1728, इसमें अगर हम 8 का डिवाइड कर दें तो छोटे वाले 1 का हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा. सो दिस इज़ इक्वल टू 216 सेंटीमीटर क्यूब. अब ये हमारे पास आ गया. अब क्योंकि हमें इसमें सरफेस एरियाज़ का रेशो निकालना है तो हम इसकी साइड निकाल लें. तो therefore side of the smaller cube कितना हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 216 सेंटीमीटर and this is equal to 6 centimeter. Now last part of the question, surface area of the smaller cube upon surface area of the original cube or bigger cube. दिस इज इक्वल टू सरफेस एरिया कितना होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर. क्यूब का सरफेस एरिया कितना होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू 6. स्मॉलर की साइड कितनी है 6, तो 6 इंटू 6 स्क्वायर अपॉन 6 इंटू फर्स्ट वाले की साइड कितनी थी 12 सेंटीमीटर. जो हमें बड़ा वाला दिया हुआ था उसकी साइड की ना 12 सेंटीमीटर. सो 6 इंटू 12 स्क्वायर.
6 से 6 कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 6 इंटू 6 अपॉन 12 इंटू 12. 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा दोनों, तो दिस इज इक्वल टू 1/4. सो देयरफॉर ratio between the surface areas of the smaller cube and original या initial cube, initial या bigger one, initial cube equal to 1:4. This is our answer. Example number 4th. A river 3 meter deep and 40 meter wide is flowing at the rate of 2 kilometer per hour. How much water fall into the sea in a minute? So यहाँ पर हमें रेट दिया हुआ है वाटर फ्लो का 2 किलोमीटर पर आवर. तो हमें इसको चेंज करना है, किलोमीटर से हमें मीटर में चेंज करना है क्योंकि हमें बाकी सारी चीज़ें मीटर में दी हुई हैं, और पर मिनट में हमें इसको चेंज करना है. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वाटर फ्लोज आउट इन 1 मिनट. कितना हो जाएगा? 2 किलोमीटर है तो 2 किलोमीटर को 2 इंटू मीटर में चेंज करेंगे तो 1000, और पर आवर मीन्स इसको 1 मिनट के लिए चेंज करेंगे तो अपॉन 60. तो इतना मीटर पानी इतनी डिस्टेंस से वो चलेगा. तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 3. तो ये आ जाएगा 100/3 मीटर. इट मीन्स ये हमारा हो गया लेंथ. सो लेंथ इक्वल टू 100/3 मीटर्स. हाइट हमारे पास हो गई, डेप्थ या हाइट एक ही बात होती है, 3 मीटर्स. एंड विड्थ ब्रेथ इक्वल टू 40 मीटर. देन हमारे पास LBH तीनों ही हैं. नाउ देयरफॉर वाटर fall into the sea in a minute equal to LBH. जितना भी इसका वॉल्यूम होगा वो सारा का सारा वही उसमें गिरेगा सी में. तो L इक्वल टू 100/3 इंटू B 40 एंड H इक्वल टू 3. 3 से 3 कैंसल, इक्वल टू 4000 meter cube. So this is our answer. Now volume of a cylinder. सिलेंडर का बेस एक सर्किल होता है. लेट द रेडियस ऑफ द सर्किल बी R and height H. So in this case, here we can write volume of a cylinder equal to area of circular base into height. तो एरिया कितना होगा? बेस इसका क्या है? एक सर्किल, तो सर्किल का एरिया होता है πr² एंड हाइट h. सो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इक्वल टू πr² h cubic units. Now example number 5th. The cost ₹2,200 to paint the inner curved surface area of a cylindrical vessel 10 meter deep. If the cost of a painting is at the rate of ₹20 per square meter, find A. Inner curved surface area of the volume, B. Radius of the base, and C. Capacity of the vessel. So for A, cost of
painting, cost of painting inner curve, the inner curved surface area, the inner curved surface area equal to rupees 2200, and rate of painting इक्वल टू कितना है, रुपीज़ 20 पर स्क्वायर मीटर, 20 पर स्क्वायर मीटर. So therefore area of inner curved surface कितना हो जाएगा, जितनी कॉस्ट है 2200 अपॉन 20 से हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास इतना स्क्वायर मीटर आ जाएगा. 0 से 0 कैंसिल एंड 110. सो दिस इज इक्वल टू 110 मीटर स्क्वायर और स्क्वायर मीटर. ये हमारे पास ए का आ गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वेसल. नाउ बी पार्ट, रेडियस ऑफ द बेस. यहाँ पर हमें डेप्थ कितनी दी हुई है, 10 मीटर. इट मीन्स हाइट, इसको हम h से डिनोट कर सकते हैं. तो डेप्थ ऑफ द वेसल और h इसको हम बोल सकते हैं इक्वल टू 10 मीटर. लेट रेडियस इक्वल टू r. सो we know that कर्व सरफेस एरिया कितना होता है सिलेंडर का, 2 पाई आर एच इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया, एंड दिस इज इक्वल टू 110. ये हमने ए में कैलकुलेट किया. सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एच तो 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर एच इक्वल टू 10 इक्वल टू 110. And this implies R equal to 110 into 7 upon 2 into 22 into 10. So 0 से 0 cancel, 11 से ये 2 times. So this is equal to 7 upon 4 meter. This is our answer, and this is radius of the vessel. Now third one is capacity of the vessel. Now C part, capacity और volume दोनों सिमिलर हैं चीज़ें. कैपेसिटी ऑफ द वेसल. सो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच. सो पाई आर स्क्वायर एच, पाई इक्वल टू 22/7, आर 7/4 आया तो 7/4 इंटू 7/4 एंड एच इक्वल टू 10. 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा. इतना मीटर क्यूब और क्यूबिक मीटर दोनों एक ही बात है, या मीटर क्यूब लिखते हैं या क्यूबिक मीटर लिखते हैं. सो दिस इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करेंगे 96.25 क्यूबिक मीटर और मीटर क्यूब. तो ये हमारे पास इसकी कैपेसिटी आ गई. सो दिस इज़ आवर कैपेसिटी. और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 96.25 किलो लीटर्स. ऐसे भी हम लिख सकते हैं. लीटर्स में जब हम बात करें तो कैपेसिटी इसको हम लीटर्स में बता सकते हैं. नाउ नेक्स्ट वन, एग्जाम्पल नंबर 6. A lead pencil consists of a cylinder of wooden with solid cylinder of graphite filled in the interior. The diameter of the pencil is 7 millimeter. This is diameter, and the diameter of a graphite is 1 millimeter. If the length of the pencil is 14 centimeter, find the volume of wood and that of graphite.
कुछ क्वेश्चंस देखने में बहुत बड़े लगते हैं और कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, लेकिन अगर उनको ध्यान से पढ़ें और एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप करते जाएं तो आपको बहुत इजी रहेगा। नाउ हियर फर्स्ट हमें डायमीटर दिया हुआ है किसका, ग्रेफाइट का और पेंसिल का। तो हम रेडियस निकालें क्योंकि हमें यहाँ पे रेडियस निकालना है। सो रेडियस ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट, पहले ग्रेफाइट का निकाल लेते हैं। ग्रेफाइट इक्वल टू कितना, 1/2 मिलीमीटर। और अगर हम इसको सेंटीमीटर में, क्योंकि हमको लेंथ सेंटीमीटर में दी है तो हम इसको सेंटीमीटर में करें तो 1/2 इंटू 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/20 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस आ जाएगा ग्रेफाइट का। हम इसको स्मॉल आर से भी डिनोट कर सकते हैं। हम इसको, क्योंकि ये अंदर वाला है, इसको हम स्मॉल आर से डिनोट कर देते हैं, स्मॉल आर। नाउ रेडियस ऑफ द पेंसिल, पेंसिल का भी रेडियस हम निकाल लेते हैं। कितना है, डायमीटर 7 है, 7 मिलीमीटर, तो 7/2 मिलीमीटर और 7/2 इंटू 10 सेंटीमीटर, और दिस इज़ इक्वल टू 7/20 सेंटीमीटर। दोनों हमारे पास रेडियस आ गए। नाउ हमें अब वॉल्यूम निकालना है वुड का और ग्रेफाइट का। तो पहले हम देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, इसका रेडियस को, पेंसिल के रेडियस को हम कैपिटल आर से डिनोट कर दें, पेंसिल, इसको कैपिटल आर से। तो वॉल्यूम ऑफ अ ग्रेफाइट पाई स्मॉल आर स्क्वायर एंड एच। एच हमारे पास गिवन है, हाइट हमारे को दी हुई है, एच इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। नाउ सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज़। 22/7 इंटू स्मॉल आर कितना आया, 1/20। सो 1/20 इंटू 1/20 इंटू 14, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये 10। एंड जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, इसको हम 2 से कैंसिल कर दें, 11 इक्वल टू 11/100 सेंटीमीटर क्यूब और क्यूबिक सेंटीमीटर, एंड दिस इज़ इक्वल टू 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों तरह से मैंने आपको लिख के दिखा दिया, क्यूबिक सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं और सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। नाउ अगेन वॉल्यूम ऑफ पेंसिल, वॉल्यूम ऑफ द पेंसिल इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, वैल्यूज़ रखते हैं 22/7। आर इक्वल टू कितना था, 7/20, 7/20 इंटू 7/20 इंटू 14, हाइट 14 है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 5.39 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास तीनों वैल्यूज, तीनों के आंसर दोनों वॉल्यूम ऑफ अ ग्रेफाइट और वॉल्यूम ऑफ द पेंसिल, दोनों के आंसर्स हमारे पास आ गए। नाउ नेक्स्ट वन, क्या कैलकुलेट करना था, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ वुड एंड दैट ऑफ ग्रेफाइट। ये दोनों हमारे पास आ गए। नहीं, सॉरी, ये तो हुआ दोनों के वॉल्यूम, लेकिन हमें वुड के लिए भी हम निकालना है, तो हमें इसको, ये पेंसिल का वॉल्यूम आया, हमें वुड का निकालना है तो हमें पहले सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड इन पेंसिल कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल टोटल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, क्योंकि हमें वुड का निकालना है वॉल्यूम। सो दिस इज इक्वल टू
5.39 minus 0.11 centimeter cube, and this is equal to 5.28 centimeter cube. This is answer. तो ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ वुड. Example number 7th. A patient in a hospital is given a soup daily in cylindrical bowl of diameter 7 centimeter. If the bowl is filled with a soup to a height of 4 centimeter, how much soup the hospital has to prepare daily to serve 250 patients? Diameter of the bowl equal to 7 centimeter. Therefore, radius of the bowl equal to 7 by 2 centimeter, and height up to soup is filled equal to 4 centimeter. Therefore, volume of soup in one bowl equal to pi r square h. वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच. Here r equal to 7 by 2 and h equal to 4. So this is equal to 22 upon 7 into 7 by 2 into 7 by 2 into h equal to 4 centimeter cube, and this is equal to 154 centimeter cube. So volume of a soup in one bowl equal to this. Therefore, this is the volume of soup given to one patient. So therefore, soup given to one patient equal to कितना 154 centimeter cube, and here in this hospital 250 patients are there. So soup given to 250 patients equal to 250 into 154 centimeter cube, and this is equal to 38500 centimeter cube, and this is equal to 38500 upon 1000 liters. Since we know that 1 liter equal to 1000 centimeter cube, and this is equal to 38.5 liters. Answer. Now next one. Next one is example number 8. The diameter of a cylindrical wooden pipe is the inner diameter of a cylindrical wooden pipe is 24 centimeter and the outer diameter is 28 centimeter. The length of the pipe is 35 centimeter. If the mass of a pipe Example number 8. The inner diameter of a cylindrical wooden pipe is 24 centimeter and its outer diameter is 28 centimeters. The length of the pipe is 35 centimeter. Find the mass of the pipe if 1 cubic centimeter of wood has mass of 0.6 gram. So for this, inner diameter of the pipe equal to 24 centimeter. Therefore, inner radius of the pipe small r equal to 24 upon 2 means 12 centimeter. Now, outer diameter of the
pipe equal to 28 centimeter. Therefore, outer radius of the pipe, कैपिटल आर से डिनोट कर देते हैं, 28/2 सेंटीमीटर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर. एंड लेंथ of the pipe, इसको हम h से डिनोट कर देते हैं, इक्वल टू 35 सेंटीमीटर. नाउ वॉल्यूम ऑफ द वुडन का बना हुआ है, सो वॉल्यूम ऑफ द वुड कितना हो जाएगा, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम. एंड एक्सटर्नल वॉल्यूम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस इंटरनल पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच. सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, पाई एंड एच कॉमन है तो पाई एच बाहर निकाल लेते हैं, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 22/7 इंटू 35, कैपिटल आर इक्वल टू 14, सो 14 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, स्मॉल आर 12, 15, एंड दिस इज इक्वल टू 110. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको ए प्लस बी ए माइनस बी करके कर सकते हैं, 14 + 12 एंड 14 - 12 इक्वल टू 1. ये हमारे पास आ जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर में, क्यूबिक सेंटीमीटर इसकी यूनिट रहेगी 110 इंटू, इनको ऐड किया 26 इंटू 2 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल टू 5720 cubic centimeter. Now mass of 1 cubic centimeter is given 0.6 grams. ये हमें दिया हुआ है, मास दिया हुआ है. Then therefore mass of the pipe equal to, जितना वॉल्यूम है उसको 0.6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 0.6 इंटू 5720 ग्राम इक्वल टू 3432 ग्राम. एंड इसको किलोग्राम में चेंज करना है तो हम इसको क्या करेंगे, 1000 से इसको डिवाइड कर दें तो हमारे पास किलोग्राम में आ जाएगा, इक्वल टू 3.432 kilograms. ये हमारा आंसर हो गया. Hope you enjoyed today's lesson. If you have any problem or doubts related to this topic, please comment below. I will try to respond each one of your questions. I will be uploading next video soon. Once again, please like my video and hit the bell icon to not miss the upcoming videos. Thank you.